we were discussing the expression. So different types of expressions are there. So three types of expressions are there. First is your infix expression. All these are arithmetic expression, right? So the first one is arithmetic infix expression, and it is of the form a plus b. That means the operator. See, the a is a operand, b is another operand, and operator is in between the operands. Okay, so it is in this form: a operator and b. Okay. For example, you see here a plus b. Plus is the operator, and a b are operand. Then postfix expression. In postfix expression, the operator is after the operand. Okay, you see these are operands. A, B are operands, and this is the operator. Example, you can see A, B, and plus. Okay. Then prefix expression. In prefix expression, the operator comes before the operand. Okay. So here you can see example plus is the operator and A, B are the operands. Okay. So these are the three types of arithmetic expressions. So this is the example, some more example of infix expression. Okay, a plus b is one of the example. Then you see another example of infix expression, arithmetic expression. A plus then star c slash b minus e, then shift operator. This is exponential operator. Okay, then f, then star means multiplication. Okay, this asterisk means multiplication, and slash means division. Okay, then g. Okay, so this is the infix expression. And if you want to evaluate this infix expression, you can evaluate. You know how to evaluate the infix expression. So for evaluating the infix expression, you have to use the precedence and associativity of the operators, and you have to follow the bracket rules also, like Bodmas rule is there. Okay, and this one, one more example with the values of these variables is given here, so you can evaluate this. Okay, and you have to follow these rules for evaluating the infix expression. Okay. So now you see um, how much things you have to remember to evaluate an infix expression. You have to remember these precedents, you have to remember this associativity, and you have to remember the Bodmas rules. Okay. Okay. Then next is prefix expression. It is of this form. We can write a plus b can be written as plus a plus ab in prefix expression. Okay, and this prefix expression is also known as Polish notation. Okay, then postfix expression, as I already discussed here. In case of postfix expression, first operand comes, then after that operator comes. Okay, the example you can see here, a plus b is same as ab plus. Okay, and this postfix expression is also known as reverse Polish notation. In prefix in expression is known as Polish notation, and postfix expression is known as reverse Polish notation. Okay. Okay. Now, in computer, whenever the expression is evaluated by computer, okay, we actually we don't use. I mean, the infix expression is not used in computer. Okay. Uh, Either prefix expression is used or postfix expression is used. But whenever we are giving the task to the computer, we are giving in the form of infix expression. So actually, what happens, whatever we give in the infix expression, that is actually translated, that is converted to either infix expression or postfix expression. Okay, normally postfix expression is used for evaluating the arithmetic expression by the computer. Okay, now the question is, why postfix or prefix expression are used instead of the infix expression? The answer is, uh, the in computer, compilers are used to translate your program into the machine language. Okay, and the compiler scans the expression, the arithmetic expression, either from left to right or from the right to left. Okay, so if you use infix expression, so it has to, compiler has to remember many rules. Like you have to remember, it has to remember the associativity rule, it has to remember the precedence rule, and also there are in one expression there may be multiple operators. So for each operator it has to scan the entire expression. Okay, so this is the problem with infix expression. And in case of computer compiler, since it is scanning from left to right and right to left, okay, so better we
should use the either infix expression or postfix either prefix expression or postfix expression. So in case of prefix expression, all the operators are present before the operand. In case of postfix expression, all the operators are present after the operands. Okay, so the compiler can get all the operators at the beginning while scanning the expression. In case of the prefix expression and case of postfix expression, it will get the operands at the beginning. Okay, so it helps in the evaluation of the expression if it is in prefix expression format or postfix expression format. Okay, so this is the reason why we use either prefix or postfix expression. Okay, any question? Okay, since there is no question, I'm moving to the next slide. Okay. Okay, now how to convert infix to postfix format. Okay, I told you that whenever the infix expression is given to the computer for evaluation, it is actually converted to either in prefix expression or postfix expression. So mostly postfix expression is used, and in the syllabus also we have this infix to postfix conversion is there, and postfix evaluation is there. Okay, so first of all we'll discuss this infix to postfix conversion and how it is done. Okay, so in infix to postfix conversion, the infix expression is converted to the postfix form. Okay, and there are basically two techniques we can convert an infix expression to postfix format. Manually you can do, or you can do that by using stack. Okay, and stack we have already read what is stack, what are the applications of stack, and how stack is used, how stack is implemented. We have already discussed that. Okay, so we will discuss here in this section how to convert the infix expression to the postfix form by using stack also. Okay. So first of all, let us discuss how to convert infix to postfix format using manual. So let us see that. Okay. So in manual algorithm, uh, whatever infix expression you are given, first of all, you have to parenthesize all the operator combinations. Okay, you see here we have this is the expression a slash b plus c minus d. Okay, so you have to parenthesize all the operator with the operands. Okay, you have to parenthesize first. Okay, you see the algorithm, fully parenthesize the infix expression, one set of parentheses per operator. So for each operator, you have to use parentheses. Okay, like here we have how many operators? One, two, three operators are there. So we have to parenthesize that. So you see how it is done. This one is already, yeah, this is first parenthesized. B plus C is first parenthesized. Okay, and after parenthesizing the b plus c, now it is treated as one operand. This is treated as one operand, b plus c. Okay, now we have this one and this one. So actually in this question this is already parenthesized. Okay, in this example this is given like this: a slash b plus c minus d. It is there already. B plus c is parenthesized, and we have to convert this to the postfix format using this algorithm. Okay, so here in this case a is one operand and this b plus c is treated as one operand. Okay, and d is another operand. Now you have to see uh, the operators. Okay, and each operator you have to parenthesize. Now you see here this one, a slash b plus c, this is parenthesized. You can see a slash b plus c, this is parenthesized here. Okay, and then after this is parenthesized. Okay, uh, this operator you have to parenthesize. Okay, see with d, this is parenthesized. Okay, so this is how we can parenthesize, and which one to parenthesize first, which one to parenthesize last. For that you have to use the precedence of the operators. Okay, since see here we have slash and here we have this division, this is a minus of subtraction. So this should be done first. That's why it is done first, and after that this is done. So in this case, all the parenthesization is done here. Okay, and after that you have to replace the right parenthesis with their corresponding operators. Okay, after parenthesizing an infix expression, we have to replace the right parenthesis with the operator. Okay,
operator in that parenthesis. For example, you see here we have b plus c. Okay, within this parenthesis, okay, we have the expression b plus c. So this parenthesis will be replaced by this operator. So you see b, c and plus is written. This parenthesis is replaced by plus. Okay. Now this is complete. Now we have to take this one. So this total here in this case we have this one. This operator is there. Now this operator will replace this one. This parenthesis. This is replaced. Okay, and now you take this one, this whole expression, and here we have left. Now this parenthesis is left. Now this will be replaced by this slash. Okay, sorry, this this will be replaced by this minus. Okay, because this slash is already completed. So the left one is this one minus, so minus replaces this last parenthesis. Okay, and after that, after completing all the right parentheses, we have to remove all the left parentheses. Okay, now after removing all the left parentheses, now we get this one. So this is the equivalent postfix expression of this expression. This is the infix expression, and this is the equivalent postfix expression of this one. Okay, so this is how we can convert an infix expression to the postfix format manually. This is the manual algorithm. Okay, so if you have any question, then ask me. Do you have any questions, students? If you don't have any question, then I'll move to the next content. Okay. तो इसको ऐसे ही लिखना रहेगा क्या? ये तो मैनुअल है। Means मेरी बात सुनो, ये मैनुअल है। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, मतलब ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये मैनुअल है। मैनुअल एग्जाम में नहीं आता है, ये खाली तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया। यहाँ पे एग्जाम में मैनुअल नहीं आएगा। जैसे नंबर्स रहेंगे तो उनके बीच में स्पेस देना है या वेरिएबल ही यूज? नहीं, स्पेस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे यहाँ पर तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ ये स्लैश को ऐसे हटाया मैंने, तो यहाँ उसके वो ये वैसे ही है, लेकिन स्पेस की जरूरत नहीं। स्पेस की जरूरत नहीं, ऐसे लिख सकते हो। स्पेस की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो जैसे लिखते हैं एक साथ। बट सर फिर वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? कौन सा? कि ए बी है, अगर हम हाँ, अच्छा, विदाउट स्पेस ये ए बी, ये सभी एक एक सिंबल है। इसको एक एक सिंबल की तरह लो तुम। अच्छा, सबको एक एक अलग अलग सिंबल की तरह लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे ओके सर। दो को नहीं लेते, एक एक सिंबल को लेना है, ठीक है। इंडिविजुअल सिंबल को लेते हैं। जब स्कैन होता है ना, इसको जब कंप्यूटर स्कैन करेगा तो इंडिविजुअली एक एक सिंबल को स्कैन करेगा, दो को नहीं लेगा, ठीक है। ओके सर। ओके, तुम इसको मतलब सेपरेट करने के लिए स्पेस दोगे, जैसे दिखेगा कि अलग अलग, वो अलग बात है, लेकिन वो इसको अलग अलग वो हिसाब से लेगा, ठीक है ना। इंडिविजुअल सिंबल को स्कैन करेगा अलग अलग से। ओके, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Okay, so this infix expression is same as the postfix expression, this one. So this is the postfix expression of this one. Okay, एग्जाम में तुम्हारा ये मैनुअल एल्गोरिथम नहीं आएगा, ठीक है ना। तुम ऐसे लेकिन मैनुअल एल्गोरिथम यूज करके तुम खुद पता कर सकते हो कि इसका कितना होगा पोस्टफिक्स, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा तुम्हारा स्टाक यूज करके। ओके, so now let us discuss the stack based algorithm for converting from infix to the postfix, okay, expression. So this is the algorithm, and here in this algorithm the input to this algorithm is the infix expression, and that expression is represented by e. Okay, here infix expression is e. यहाँ पे हम एक एल्गोरिथम बना रहे हैं, ठीक है ना। और इस एल्गोरिथम का काम क्या है? इस एल्गोरिथम का काम ये है कि ये इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और इसको हम इनपुट क्या देंगे? इस एल्गोरिथम को इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसको इनपुट देना है, और ये हमको आउटपुट क्या देगा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इनपुट एक्सप्रेशन इज ई एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज पी। ओके, so now let us discuss this algorithm. So initially we will give this e, the infix expression, as input to this algorithm. Okay, so while you see here, this is the step one of this algorithm. Here we will use stack. Okay, so this algorithm uses stack to implement the infix to postfix conversion. Okay, so you see, this is the step one. While there are more symbols to be read from infix expression e,
ओके, रीड द नेक्स्ट सिंबल फ्रॉम ई। ई क्या है? ई इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, इनफिक्स एक्सप्रेशन। हाँ, तो जो इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, तो कैसे करोगे? तो तुम्हें स्कैन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट से लेकर राइट को, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, पूरा राइट एंड तक जाना है, स्कैन करते करते एक एक सिंबल को स्कैन करना है तुम्हें। ठीक है, तो कब तक करोगे? जब तक ये सारा का सिंबल स्कैन नहीं कर लेते हो इनफिक्स एक्सप्रेशन से। इसलिए यहाँ लिखा है देखो, वाइल देयर आर मोर सिंबल्स टू बी रेड फ्रॉम इनफिक्स एक्सप्रेशन ई। मतलब सभी सिंबल को लेफ्ट हैंड साइड से एक एक करके स्कैन करना है, जब तक पूरा सारा का सारा सिंबल को स्कैन नहीं करते हैं। जब तक एक्सप्रेशन में सिंबल है स्कैन नहीं किए बचा है, तो हम इसको रिपीट करेंगे। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इनफिक्स एक्सप्रेशन से लेफ्ट हैंड साइड से लेके एक एक करके सारा सिंबल को स्कैन करना है। ठीक है ना, रीड करना है उसको। उसकी रीड रीड देखो, यहाँ रीड कर रहे हैं। ठीक है ना, सो वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, रीड द नेक्स्ट सिंबल फ्रॉम ई। तो हम नेक्स्ट सिंबल मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन से सिंबल को रीड करेंगे। ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, पहले से लेके एंड राइट हैंड साइड के एंड तक, पूरा एंड तक सारा का सारा सिंबल को रीड करना है। तो मान लो तुमने पहला सिंबल यहाँ पर रीड किया। ठीक है ना, पहला सिंबल हमने यहाँ पर रीड किया, और जो भी सिंबल रीड करते हैं ना हम, उसको चेक करना है वो क्या है, वेदर इट इज ऑपरेंड और इट इज लेफ्ट पैरेंथेसिस और इट इज राइट पैरेंथेसिस और इट इज ऑपरेटर, वो क्या है। जो सिंबल स्कैन कर रहे हैं हम लोग, रीड कर रहे हैं ना, इनफिक्स एक्सप्रेशन से सिंबल को रीड कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको चेक करना है, रीड करने के बाद उसको चेक करना है वो क्या है। ठीक है ना, तो सिंबल जो ये जो सिंबल हमने इसे एक्सप्रेशन से इसको रीड किया, अब उसको चेक करें। देखो पहले चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज ऑपरांड और नॉट। अगर ये ऑपरांड है तो क्या करना है, देन आउटपुट ई टू पी। पी क्या है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, पी इज इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को स्कैन कर रहे हैं, जो सिंबल स्कैन कर रहे हैं हम उस सिंबल को चेक करेंगे। अगर वो ऑपरांड है तो उसको आउटपुट करेंगे पी को। पी क्या है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, पी को उसको देना है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में उसको आउटपुट करना है। अगर वो ये है लेफ्ट पैरेंथेसिस है, इफ द सिंबल इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, देन क्या करना है, देन पुश इट ऑन टू द स्टाक। हम यहाँ पर एक स्टाक यूज कर रहे हैं, तो इसको स्टाक में पुश करना है। ठीक है ना, और अगर if this symbol is right parenthesis, then pop operators from the stack to output p until let parenthesis is popped and do not output either of the parenthesis। मतलब ये है कि अगर ये जो सिंबल जो हमने रीड किया है, अगर वो राइट पैरेंथेसिस है, तो क्या करना है, हमें स्टाक से, स्टाक तो हम यूज कर रहे हैं ना, स्टाक में इधर से पुश कर रहे हैं, तो अगर हमें हमें इनपुट सिंबल जो हमने स्कैन किया था एक्सप्रेशन ई से, अगर वो राइट पैरेंथेसिस है, तो हमको क्या करना है, स्टाक से पॉप करना है। क्या पॉप करना है? ऑपरेटर। ठीक है ना, पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक टू आउटपुट पी। ठीक है ना, ऑपरेटर स्टैक से पॉप करना है, मतलब निकालना है, रीड करके वहां से रिमूव करके लाना है, और उसको देना किधर है, आउटपुट पी को देना है, पोस्टफिक्स को देना है, अंटिल लेफ्ट पैरेंथेसिस इज पॉप। मतलब जब तक ये लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आता है। ठीक है ना, कहाँ पर नहीं आता है? स्टैक में। स्टैक में तुम्हें सारा का सारा ऑपरेटर पॉप करके लाना है। ठीक है ना, वहां से रिमूव करके लाना है, आउटपुट में देना है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। और कब तक पॉप करते रहोगे? जब तक तुम्हें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेगा, और उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी पॉप करना है, उसको भी हटाना है स्टैक से। ठीक है ना, खाली हटाना है, और इस लेफ्ट पैरेंथेसिस को आउटपुट नहीं करना है। neither you have to output this right parenthesis to output, nor you have to output this left parenthesis to output। इन दोनों को, ये राइट पैरेंथेसिस हो या लेफ्ट पैरेंथेसिस हो, इनको आउटपुट को नहीं देना है। ठीक है ना, खाली जो स्टैक में ऑपरेटर है, सारे ऑपरेटर को पॉप करके आउटपुट को देना है। कब तक करोगे पॉप? जब तक तुम्हें ये वाला नहीं मिलता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। ठीक है ना, जब लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया स्टैक में, अंदर स्टैक के अंदर, उसको भी हटा दो, लेकिन उसको आउटपुट नहीं करना है। ठीक है ना, तो ये कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इफ द सिंबल इज राइट पैरेंथेसिस। ओके,
एंड इफ द सिंबल इज ए ऑपरेटर, जो सिंबल स्कैन कर रहे हैं एक्सप्रेशन ई से, इफ इट इज ए ऑपरेटर, देन व्हाट टू डू, देन पॉप हायर और इक्वल प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। मतलब स्टैक में, जो स्टैक में तो होता है ना ऑपरेटर, तो किस ऑपरेटर को पॉप करना है? अभी जो ऑपरेटर हमने स्कैन किया है इनफिक्स एक्सप्रेशन से, उससे हायर प्रेसिडेंस वाला या तो फिर उससे उसके साथ इक्वल प्रेसिडेंस वाला जो भी ऑपरेटर है स्टैक में, उस सारों को पॉप करना है। उन सारे ऑपरेटर को पॉप करना है स्टैक से, ठीक है ना। पॉप करके क्या करना है, उसको भेजना है आउटपुट, मतलब पी को भेजना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को भेजना है, ठीक है ना। then stop before popping a lower precedence operator or left parenthesis, okay, and push the operator on the stack। मतलब ऐसे कब तक पॉप करते रहेंगे स्टैक से? अगर कोई ऑपरेटर आता है, स्कैन कर रहे हैं इसे, तो हमें पॉप करना है। किसको पॉप करना है? जितना भी हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर है या तो फिर इक्वल प्रेसिडेंस ऑपरेटर है, ओके, इसके साथ, इससे मतलब जो हमने अभी स्कैन किया, इससे हायर होना चाहिए या तो फिर इससे सेम प्रेसिडेंस वाला होना चाहिए। कहाँ पे? स्टैक में। उन सारों को पॉप करना है, पॉप करके आउटपुट करना है, मतलब पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में देना है, ठीक है ना। और कब तक ऐसे करते रहेंगे? जब तक हमें इधर एक लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं मिलता है स्टैक में, या तो फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल गया या तो फिर लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर मिल गया स्टैक में, तो वहीं स्टॉप करना है, ठीक है ना। वही स्टॉप करना है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर हमने इससे इनफिक्स एक्सप्रेशन से स्कैन किया था, उसको वहीं स्टैक के अंदर पुश कर देना है, ठीक है ना। और ये उसके बाद स्टेप 7 इज एंड व्हाइल खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद सारा का सारा हमने यहाँ पर क्या किया, देखो, व्हाइल देयर आर मोर सिंबल्स, जब तक सिंबल ये एक्सप्रेशन ई में है तब तक हम रीड कर रहे हैं। तो सारा का सारा सिंबल रीड हो गया, कहाँ से? एक्सप्रेशन ई से। हो जाने के बाद अभी देखो कुछ हम जो भी ऑपरेटर हमें मिल रहा था उसको क्या कर रहे थे, हम इंसर्ट कर रहे थे कहाँ पे? ऑपरेटर हो या ऑपरेंड हो, जो भी हो, नहीं, ऑपरेंड ऑपरेंड को तो हम आउटपुट दे रहे थे, लेकिन ऑपरेटर अगर आ रहे थे उसको स्टैक में पुश कर रहे थे। तो ये सारा का सारा स्कैन करने के बाद यहाँ से एक्सप्रेशन ई से लास्ट में अगर कोई सा सिंबल या ऑपरेटर तुम्हारा स्टैक में बचा है, तो वो सारों को फिर से, सारे ऑपरेटर को पॉप करना है स्टैक से, पॉप करके फिर से पी को देना है, आउटपुट को देना है, पोस्टफिक्स में देना है। तो हाँ बोलो, ये है एल्गोरिथम। समझ में आया? तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल। सो सी हियर, this is the infix expression, okay. We will convert this infix expression to its equivalent postfix expression, okay, and we will use the stack based algorithm, okay. Now this is the scenario, you see, ये है तुम्हारा आउटपुट एक्सप्रेशन यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है ना। और ये है स्टाक, स्टाक ये है स्टाक, स्टाक यहाँ पर दिखेगा, स्टाक में क्या हो रहा है यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है ना। और ये है इनपुट सिंबल ये वाला क्या कहाँ से मिल रहा है? ये जो है हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसमें से हमें स्कैन करना है, रीड करना है पूरा, लेफ्ट साइड से स्किन रीड करते करते जाना है, स्कैन करते करते जाना है पूरा एंड तक, यहाँ तक, ठीक है ना। पहले ए को रीड करोगे, फिर इसको स्लैश को, सभी सिंबल को रीड करना है। पहले रीड करेंगे किसको? ए को, फिर उसको चेक करेंगे क्या है वो, फिर ये सिंबल को रीड करेंगे, देखेंगे वो क्या है, जो है उस हिसाब से हमें अप्लाई करना है एल्गोरिथम। देन ये ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट स्कैन रीड करेंगे, देन बी रीड करेंगे, देन दिस plus will be read, then c will be read, then right hand this right parenthesis will be read, then minus will be read, then d will be read। उसके बाद खत्म हो गया, और रीड नहीं करना है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। तो पहला यहाँ पर सिंबल हमें कौन सा रीड करना है, देखो कौन सा सिंबल पहले रीड करेंगे, देखो इनपुट सिंबल कौन सा है पहला वाला रीड करेंगे, बताओ मुझे। सर ए। ए इज रीड। तो ये सिंबल अगर, इफ द इनपुट सिंबल, ए सिंबल क्या है, वेदर इट इज ऑपरेंड और इट इज ए लेफ्ट पैरेंथेसिस और इट्स ए राइट पैरेंथेसिस और इट इज ऑपरेटर, ये क्या है, व्हाट इज इट? सर ऑपरेंड। Operand. So if operand you have read the operand, then what to do? If the input symbol is operand, then what to do? See here, if the input symbol is operand, then what to do? Then output it to p। p क्या है? postfix expression, ठीक है ना। अगर इनपुट सिंबल ऑपरेंड है, क्या कर रहे हैं हम लोग? देन आउटपुट इट टू पी, ओके। तो इसको ए को क्या करना है, क्या करेंगे? ये देखो इनपुट सिंबल इज ए, फर्स्ट इनपुट सिंबल है, इसको क्या करेंगे? देखो इनिशियली स्टैक नील है, स्टैक में कुछ नहीं है, और ये है आउटपुट एक्सप्रेशन। तो अगर ए हमने पहला वाला सिंबल ए को रीड किया, और ये क्या है? इज ऑपरेंड। तो इफ इट इज ऑपरेंड देन व्हाट टू डू? आउटपुट इट।
आउटपुट देखो, आउटपुट ये है, यहाँ आउटपुट कर लिया यहाँ पर ये। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन नेक्स्ट सिंबल इन रीड करो। नेक्स्ट कौन सा है? क्या Sir, है? operator. ऑपरेटर, स्लैश है, स्लैश ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। देखो नेक्स्ट इनपुट सिंबल ये स्लैश, देखो इसको हमने यहाँ लिखा है। इनपुट सिंबल को जितना रीड करे उसको यहाँ लिखना है ऐसे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने इसे इनपुट सिंबल में लिखा है, इसको हमने रीड किया। अगर ये ऑपरेटर है तो क्या करना है? देखो, इफ इट इज ऑपरेटर देन व्हाट टू डू, क्या करना है? देन व्हाट टू डू, पॉप हायर और इक्वल प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक। स्टैक से क्या करना है? पॉप करना है। किसको पॉप करना है? हायर प्रेसिडेंस या तो फिर इक्वल प्रेसिडेंस ऑपरेटर जो भी है स्टैक में, उसको पॉप करना है। और उसको पॉप करके कहाँ देना है? आउटपुट करना है, ठीक है ना? पॉप मतलब क्या? रिमूव करना है स्टैक से, रिमूव करके उसको आउटपुट में देना है, आउटपुट करना है, ठीक है ना? और ये कब तक करोगे? जब तक तुम्हें लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर नहीं मिलता या तो फिर ये वाला लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है, तब तक करना है इसको, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर ये वाला अभी हमें इनपुट सिंबल क्या मिला? ये वाला ऑपरेटर, ठीक है? अच्छा, ये वाला देखो, ये तो करेंगे, पॉप करेंगे, उसके एंड में क्या करना है? पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। ये जो ऑपरेटर हमने स्कैन किया अभी, उसको इसमें पुश करना है। किसमें? स्टैक में पुश करना है। ये तो पॉप करोगे, पॉप करने के बाद ये वाला जो ऑपरेटर है उसको पुश करना है स्टैक में, ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ पर हमने ये इनपुट सिंबल हमारे क्या है? ये स्लैश है, डिवीजन वाला। और अगर डिवीजन आता है तो हमें चेक करना है, क्या करना है, कहाँ पे चेक करना है? स्टैक में, स्टैक से पॉप करना है। किसको पॉप करेंगे स्टैक में? स्टैक में ना, अगर इससे, ये स्लैश से, डिवीजन से अगर कोई लोअर प्रेसिडेंस, कोई हायर प्रेसिडेंस या तो फिर सेम प्रेसिडेंस वाला अगर ऑपरेटर है स्टैक में, तो उसको पॉप करना है, पॉप करके आउटपुट में देना है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको स्कैन किया ये सिंबल को, हमें स्टैक में कुछ है क्या? बताओ मुझे, कुछ है स्टैक में? No, sir. कुछ भी नहीं है, तो पॉप करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्टैक नील है, स्टैक इज एम्प्टी। तो हम पॉप नहीं कर रहे हैं, तो पॉप नहीं, तो लास्ट में क्या करना है? ये वाला तो नहीं करना है, क्या करना क्या है? पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक, है कि नहीं? देखो, पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक, समझ में आया? देखो, पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। ये जो हायर ऑर्डर ऑपरेटर या तो फिर इक्वल प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर को पॉप करते अगर होता, तो वो तो नहीं है ना। उसको पॉप करते कब तक? ये वाला जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता तब तक करते, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, अभी तो पूरा का पूरा खाली है स्टैक, तो ये नहीं करेंगे। तो लास्ट वाले ये तो करना ही करना है, पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टैक। कौन सा ऑपरेटर? जो हमने स्कैन किया, ये वाला रीड किया जो वाला। तो ये देखो, ये हमने रीड किया था स्लैश को, उसी को यहाँ पर इंसर्ट कर लिए। देखो, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, स्टैक में इसको इंसर्ट कर लिए, और इस तरफ आउटपुट में जो ये था वही यहाँ पर लिख लिए, जो था वही है, ठीक है ना? जो स्टाटस आउटपुट का पहले था यहाँ पर वही है, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट सिंबल इनपुट करेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? देखो क्या है? Sir, Next left parenthesis. लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो इनपुट सिंबल देखो मैंने लिखा है यहाँ पर लेफ्ट पैरेंथेसिस, ठीक है? तो अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलता है तो क्या करना है? देखो, इफ दिस सिंबल इज लेफ्ट पैरेंथेसिस देन व्हाट टू डू। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? Push it to the stack. पुश इट टू द स्टैक। देखो यहाँ मैंने स्टैक में पुश किया, पहले स्टैक में क्या था हमारा? इसके पहले ये स्लैश था, देखो, Slash. हाँ स्लैश था। अभी ये मैंने इसको पुश किया, देखो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पुश कर लिया, और इस तरफ आउटपुट में जो था वही है, सेम ये। ओके, यहाँ तक समझ में आया स्टेप तक? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा सिंबल इनपुट रीड करेंगे? देखो चेक करो सारा का सारा रीड हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ है, और भी बचा है। तो नेक्स्ट कौन सा रीड करेंगे? देखो Operator. ये ऑपरेटर है, ये लेफ्ट पैरेंथेसिस के बाद कौन सा है? Sorry, Operand. operand, sir. ऑपरेंड, ऑपरेंड है बी। तो यहाँ बी देखो लिखे, ऑपरेंड लिखे। तो अगर ऑपरेंड है तो क्या करना है उसको? Sir, direct output में दे डायरेक्ट आउटपुट करना है। देखो आउटपुट कर लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आउटपुट कर लिए, और ये जो स्टैक में जो था वही है, ठीक है ना? और ये इस तरफ तो ठीक है, ये खत्म हो गया, यहाँ आउटपुट कर लिया ऑपरेंड है इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, चेक करो और कुछ बचा है क्या? हाँ बचा है, क्या है नेक्स्ट? क्या है? Sir, operator है. ऑपरेटर। तो देखो इनपुट इनपुट सिंबल स्कैन किए, देखो यहाँ पर ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर। हाँ ऑपरेटर, ये वाला हमने स्कैन किया, रीड किया। तो अगर ये ऑपरेटर है तो क्या करना है इसको? अगर ऑपरेटर होता है तो क्या करना है? देखो, इफ ऑपरेटर देन व्हाट टू डू, पॉप
higher or equal precedence operators from the stack to the output, okay, and stop before popping a lower precedence operator or a left parenthesis. ठीक है ना, हमें पॉप करना है, किसको पॉप करना है, हायर प्रेसिडेंस या तो फिर सेम प्रेसिडेंस वाला इसके साथ, जो इसी से इससे इस ऑपरेटर से जो हमने अभी रीड किया उससे, या तो फिर हायर होना चाहिए, हायर प्रेसिडेंस होना चाहिए, या तो फिर इक्वल सेम प्रेसिडेंस होना चाहिए, उस ऑपरेटर को स्टैक से पॉप करना है, पॉप करके आउटपुट को देना है। और कब तक ऐसे करते रहेंगे, जब तक एक लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर नहीं मिलता है या तो फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है, तब तक पॉप करना है। तो यहाँ पर देखो स्टैक में हमने अभी ये वाला रीड किया था, ये प्लस ऑपरेटर। अभी देखो यहाँ पर ये वाला स्टैक में देखो कुछ ऑपरेटर है क्या जो कि इससे हायर प्रेसिडेंस हो या तो फिर इससे सेम प्रेसिडेंस हो, उसको हमें पॉप करना है जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है। तो देखो यहाँ पर है क्या कुछ स्टैक में, डिवीजन। डिवीजन नहीं, डिवीजन के पहले क्या है, सर लेट पैरेंथेसिस। ठीक से पढ़ो। इफ सिंबल इज ऑपरेटर देन पॉप higher or equal precedence operators from the start to the output and stop, देखो क्या लिखा है, and stop before popping a lower precedence operator or a left parenthesis। तो यहां पर देखो तुम्हें, अच्छा ये भी एक स्टाक, ये स्टाक है ना, ये स्टाक है, इसको याद रखो, दिस इज ए स्टाक। तो स्टाक में ये पहले इसको डिवीजन को पुश किए थे, उसके बाद किसको पुश किए हो, ये स्लैश को पुश किए हो। तो अभी स्टाक के टॉप में क्या है, स्टाक के टॉप में अभी क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, सर लेफ्ट पैरेंथेसिस। लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तो और कोई ऑपरेटर है क्या, अगर ऑपरेटर होता तो पॉप करते, कोई ऑपरेटर है क्या, नो सर। तो यह तो ऑपरेटर नहीं है ना, ये अगर ये चीज तुम करते, अगर कोई ऑपरेटर होता, तो कोई भी ऑपरेटर नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हमें ये है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, ऑपरेटर नहीं है तो स्टॉप करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस तक हम मिल गया और इसको पॉप नहीं करना है। देखो स्टॉप बिफोर पॉपिंग ए लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर और ए लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर्ड इन द स्टार। तो हमें ये वाला एनकाउंटर हो गया और कुछ भी नहीं मिला, कोई सा भी ऑपरेटर नहीं मिला, तो क्या करना है, स्टॉप करो, उसके बाद क्या करना है, पुश द ऑपरेटर ऑन द स्टार, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इस ऑपरेटर को यहाँ पर हमने स्टाक में पुश कर लिया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। यस सर। तो कोई सा ऑपरेटर यहाँ पर नहीं है तो पॉप करने का सवाल ही नहीं है, तो खाली इसको पुश कर रहे हैं, ये वाला जो रीड किया था ऑपरेटर, इसको पुश कर लिए, ठीक है ना, इसको तो पुश करना ही है, पुश कर लिए, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। और ये तो जो था पहले से वही है आउटपुट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा देखो, नेक्स्ट कौन सा सिंबल, नेक्स्ट कौन सा सिंबल, इनपुट सिंबल देखो, सर ऑपरेंड। ऑपरेंड। तो ऑपरेंड देखो सी यहाँ पर लिखा मैंने, और अगर ऑपरेंड होता है तो क्या करना है, उसको आउटपुट में देना है, देखो आउटपुट में लिखा है मैंने, देखो आउटपुट में लिखा है, ठीक है। अच्छा ये खत्म हो गया, नेक्स्ट कौन सा है देखो, राइट पैरेंथेसिस। राइट पैरेंथ, देखो राइट पैरेंथेसिस यहाँ पर इनपुट सिंबल में लिखा राइट पैरेंथेसिस। और अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे इफ द सिंबल इज ए राइट पैरेंथेसिस देन क्या करना है, देन पॉप ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक टू आउटपुट until a left parenthesis is popped and do not output either of the parenthesis। तो क्या करना है, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है इनपुट सिंबल तो क्या करना है, पॉप करना है, किसको पॉप करना है, सारे ऑपरेटर को, कहाँ से, स्टैक से पॉप करना है, ठीक है ना। पॉप करके किधर देना है, आउटपुट में देना है, ठीक है ना। और ये जो लेफ्ट, कब तक आप पॉप करते रहोगे, जब तक तुम्हें एक लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलता है, ठीक है ना। जब लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल जाएगा उसको खाली डिलीट करना है, उसको आउटपुट नहीं करना है, लेफ्ट पैरेंथेसिस जो मिल जाएगा ना उसको खाली डिलीट करना है, हटाना है, उसको आउटपुट नहीं करना। तो देखो, तो अभी हमें राइट पैरेंथेसिस, यहाँ पर हम इनपुट सिंबल है राइट पैरेंथेसिस, और हमारा स्टैक का सिचुएशन क्या है, ये है स्टैक, ये है स्टैक। तो स्टैक के टॉप में क्या है बताओ मुझे, अभी स्टैक टॉप में क्या, प्लस। प्लस है। तो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम वी हैव टू पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक, ओके, until a left parenthesis is coming is encountered in the stack, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना ऑपरेटर है स्टैक में, एक ही है, लेफ्ट पैरेंथेसिस के तक, लेफ्ट पैरेंथेसिस तक
एक ही ऑपरेटर है, तो उसी को खाली ले लो यहाँ से, ऐसे पॉप करो, पॉप करने के बाद कहाँ पर आउटपुट करना है, देखो आउटपुट में लिख लिए प्लस, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, जो लेट पैरेंथेसिस यहाँ पर है उसको खाली डिलीट करना है, उसको यहाँ आउटपुट में नहीं लाना है, उसको खाली डिलीट करना है। देखो इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, खत्म हो गया, उसको डिलीट कर दिया। और बचा क्या है स्टैक में, देखो स्टैक में भी बचा क्या है, ये वाला बचा है स्लैश, समझ में आया? हेलो, Yes, sir. हाँ स्टैक में ये वाला बचा है, स्लैश Yes, sir. बचा है। ओके, अच्छा नेक्स्ट सिंबल स्कैन करो, ये राइट पैरेंथेसिस खत्म हो, नेक्स्ट सिंबल क्या है देखो, माइनस। माइनस। देखो माइनस यहाँ स्कैन किए, और अगर माइनस है इट्स ऑपरेटर, तो अगर ऑपरेटर है तो क्या करना है बताओ मुझे, अगर ऑपरेटर है तो क्या करना है बताओ। सर सेम ऑर्डर या हायर प्रेसिडेंस का होगा तो पुश करेंगे उसको। नहीं नहीं, उसको क्या करना है, यहाँ से पॉप करना है, स्टैक से पॉप करके आउटपुट करना है। इससे ये जो हमने ऑपरेटर अभी रीड किया है, इससे अगर सेम प्रेसिडेंस वाला या तो फिर से हायर प्रेसिडेंस वाला अगर ऑपरेटर तुम्हें मिलता है स्टैक में, ठीक है ना, तो उसको क्या करोगे ना, उसको पॉप करना है, यहाँ से पॉप करके आउटपुट में पुश करना है। देखो यहाँ पर आउटपुट में पुश करना है। उसके बाद ये जो ऑपरेटर है इसको यहाँ पर पुश करना है स्टैक में, देखो इसको यहाँ पर पुश किए माइनस, समझ में आया? Yes, sir. ओके, यस सर। देन ये माइनस Yes, sir. खत्म हो गया। नेक्स्ट इज डी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, ऑपरेंड, ठीक है। नेक्स्ट इज Yes, sir. ऑपरेंड, तो ऑपरेंड है तो क्या करना है, डी इज ऑपरेंड, ऑपरेंड है तो क्या करना है, सर आउटपुट में आउटपुट। देखो आउटपुट में लिख दे यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट को आउटपुट में रखना है। हाँ Yes, sir. हाँ, डी को आउटपुट में ले लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑपरेंड है, ठीक है। अभी देखो और कोई बचा है क्या इस एक्सप्रेशन में, इनफिक्स एक्सप्रेशन और कुछ बचा है, नहीं सर। और कुछ बचा नहीं है। तो अगर और कुछ बचा नहीं तो ये एंड वाइल लूप खत्म हो गया। देखो एंड वाइल खत्म हो गया, वाइल लूप यहाँ से शुरू हुआ था और ये खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद लास्ट में क्या करना है हमें, पॉप द रिमेनिंग ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक टू द आउटपुट। अगर कोई रिमेनिंग ऑपरेटर स्टैक में है तो वो सारों को पॉप करना है, पॉप करके आउटपुट में लिखना है, ठीक है ना। अभी देखो स्टैक में कोई बचा है क्या, ऑपरेटर बचा है, Yes, sir. कौन सा है, Minus. माइनस। और इसको पॉप करो यहाँ से, इसको पॉप करके यहाँ लिखो, देखो लिख लिए, समझ में आया? Yes, sir. खत्म हो गया। Yes, so sir. this is the equivalent post fix expression of this okay. So this is your infix expression, and its equivalent post fix expression is this one, so it is written here. Okay, so the infix expression this is same as the post fix expression this one. Okay, any question? Any question students? अगर कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है स्टूडेंट्स? Okay, since there is no doubt, I'm moving to the next slide. Yes, so this is assignment for you. Convert the following infix to equivalent postfix form showing stack status after every step in the tabular form. तुम्हें ऐसा ये वाला करना है, ऐसे टेबल टाइप का बना के इसको सॉल्व करना है, ये वाला इसको करो। ये तुम्हारा इनफिक्स एक्सप्रेशन, इसको अभी कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करके फोटो उठा के मुझे भेजो, कॉपी में करो, कॉपी में पेन पेपर में करो, ठीक है ना। उसका फोटो उठा के मुझे भेजो व्हाट्सएप, जल्दी कर पाओगे? एल्गोरिथम है तुम्हारे पास, मैंने दिया है तुम्हें, पीपीटी ऑलरेडी कल दिया था, जो स्टैक वाला पीपीटी उसी में है, देखो चेक करो। Yes, sir. हाँ जल्दी से करो, विद इन 2-3 मिनट्स, जल्दी से करो। अगर नहीं होता है, कहाँ पे डाउट होता है मुझे पूछो, क्विक क्विक बी फास्ट। ये क्वेश्चन लिख लो पूरा, ये वाला ऐसे स्टेप फॉलो करना है तुम्हें, ये पूरा स्टाटस दिखाना है, पूरा सारे स्टेप में क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे दिखाना है तुम्हें। क्वेश्चन लिख लो,
क्वेश्चन भी होगा उसी में जो मैंने तुमको दिया है ना, पीपीटी दिया है, उसमें होगा ये क्वेश्चन, देखो। और इसका आउटपुट भी होगा, देखो ये वाला होना चाहिए आउटपुट, ये वाला देखो, ठीक है ना। दिस इज द पोस्ट वीक इक्वेशन, बट कैसे होता है ये वाला तुम्हें करके दिखाना है मुझे। एग्जाम में आएगा, ये ऐसा आता है एग्जाम में कि पूरा स्टॉक का स्टाटस पूरा दिखाना है, पूरा ईच स्टेप में कैसे हो रहा है। ओके, सो डू इट फास्ट। और अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।